Hello and welcome to Dream Podcast. I am Nandini and joining me co-founder Aditi. We are great to have Miss Indu Tomar with us as special guest. Hi, today we are diving into a conversation that quietly touches so many homes yet is rarely spoken about openly. Indu Tomar is the founder and president of Region Foundation and the founder of Find Balance. She focuses on emotional awareness, empowering women, children, and helping families thrive emotionally. Miss Indu Tomar, from your experience working with family, why do you think conversation around marriage across generations are emotionally changed? Hi Nandini, hi Aditi. Can you just come again with the question because of Miss some technical Indu glitch? Tomar, Yes. from your experience working with family, why do you Mhm. think conversation around marriage across generations are emotionally changed? Yes, it is changed because the time has changed, and you know, as elders, we think चीज़ें अपने हिसाब से हो जाएंगी. We were on survival mode. तो हम लोग अपने सर्वाइवल मोड के हिसाब से शादी और रिश्ते निभाना और उन सब चीज़ों को सीखते थे, समझते थे. बट नाउ द मैरिजेस आर फॉर दिस जनरेशन इज़ लाइक अपनी खुद की एक्सपेक्टेशंस को जीना, अपने इमोशंस को जीना, कुछ रोल्स में चेंज लेके आना. सो एवरी जनरेशन हैज़ देयर ओन टाइम एंड चेंजेस. सो मैरिजेस का कॉन्सेप्ट भी जो है वो ऑल अराउंड चेंज हुआ है. इमोशनल अंडरस्टैंडिंग होती है बट मिसिंग क्यों हो जाती है मतलब बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन देयर इज अ emotional understanding that we don't have. ओके, सो बेसिकली इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, यू आर करेक्ट, दोनों साइड होती है. लेकिन वो मिसिंग इसलिए होती है बिकॉज कम्युनिकेशन गैप रहता है. एंड जब कम्युनिकेशन गैप होगा, सो ऑटोमेटिकली इन दिस चेंजिंग एरा, इन दिस चेंजिंग सोसाइटी, जो वैल्यूज है न्यू जनरेशन के और ओल्ड जनरेशन के, वो वैल्यूज में कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े डिफरेंसेस आने लगते हैं. राइट. सो एक दूसरे का म्यूचुअल रिस्पेक्ट जरूर होता है, बट जब तक वो रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग्स को लेकर के जब तक बात ही नहीं होगी, कम्युनिकेशन ही नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली वो सब चीजें चेंज हो जाएंगी. Marriage between generations isn't just about tradition value, modern ideas. It is also about expecting, feeling, identity, silent pressure. Mm-hmm. From our grandparents' duty based marriages to our parents' balancing act, today's search is for emotional safety. Marriages reflect the generation gap more than anything else. So, what do you expect from me to say? It's your answer. Okay. It's my answer, but I just want to understand from your point of view. Because Okay. जब grandparents की बात आती है, marriages की बात आती है, so what exactly you think? मेरे को एक समझ आता है कि ग्रैंड पेरेंट्स के डिफरेंट पर्सपेक्टिव थे पहले, वो मेरे को Mm-hmm. समझ आता है. बट अब क्या है कि जैसे मतलब पेरेंट्स जैसे होते हैं दोनों वर्किंग होते हैं, दे ट्राई टू बैलेंस ईच अदर, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी शेयर हो जाती है. ठीक है, बट हमारे जनरेशन में सपोजेंगली अब टेक्नोलॉजी आ गई. ठीक है, Mm-hmm. उसमें होता है कि डर बढ़ जाता है हमारे पेरेंट्स को Hmm. कि सपोजिंगली वी डू समथिंग, तो मतलब पेरेंट्स का ये होता है कि हाँ ये ऐसे कर रही है, तो कुछ तो ऐसा मतलब वैसा हो जाता है कि यूज करते हैं या कुछ, मतलब जैसे हिंज होता है तो या Mm-hmm. बम्बल, तो वो डर बढ़ जाता है उनका. तो
तो मतलब वही ये एक अरे सो बेसिकली क्या होता है, ग्रैंड पेरेंट्स का एरा डिफरेंट है, पेरेंट्स का एरा डिफरेंट है, एंड जो बच्चों का एरा है या जो अभी यंग माइंड्स हैं या फिर मैं कहूँ यूथ है, उनका एरा डिफरेंट है, सबका But इमोशनल। हम्म। but according to grandparents, then parents used to agree for it. Now, our time, we can't go against them. Why? Because we can choose our guy for our own rights. We know how we're going to stay with him or thing out. Because हम्म। we know end of the day we have the responsibility of family, personal life as well career. We have to manage all these things together. We, हम्म। they think that struggle they have only done. We are just doing time pass in this world without any struggles. We are can do also struggle at the same time. That is why so. That can be thing वो grandparents टाइम में पेरेंट्स मान जाते हैं, अच्छा ठीक है पेरेंट्स बोल रहे हैं हाँ शादी कर लो। आज के टाइम में नहीं है वो चीज। जब बोलो हम कर दे शादी और जो उनकी मर्जी से हो शादी वो पॉसिबल तो नहीं है आज के टाइम में। सो वही एग्जैक्टली दैट इज द थिंग कि आज की डेट में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, बट द ओनली थिंग इज, सी आई जस्ट गिव यू वन एग्जांपल ऑन दिस। हमारे टाइम में हमें जब पेरेंट्स बोला करते थे, फॉर यू गाइज लाइक इट विल बी लाइक यू नो द रिलेशन, लाइक ग्रैंड पेरेंट्स, ओके। सो हमारे टाइम में जब पेरेंट्स बोलते थे हमें कि आपको इस तरीके से बैठना है, इस तरीके से पूजा घर में जाना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे वैसे करना है, तो वी जनरली डिडंट आस्क द क्वेश्चंस, टू मेनी क्वेश्चंस हमने पूछे ही नहीं वो सारे, राइट। शायद हमने, मम्मा ने बोला है, पापा ने बोला है, बात खत्म हो गई और हमें वैसे ही करना है, करेक्ट। बट आज की जो जनरेशन है वो क्वेश्चंस पूछती है, वो लॉजिक जानना चाहती है कि हमें ये क्यों करना है, शादी करनी है तो क्यों करनी है, शादी के बाद क्या होगा, उस तरीके की स्टेबिलिटी कैसे होगी, या स्टेबिलिटी। सो उस बीच में क्या है, वो गैप है, सबकी अंडरस्टैंडिंग गैप है, सबकी अपनी पर्सनल चॉइसेस हैं, इसीलिए वो मैरिजेस को लेकर के भी वो उनके बीच में जो गैप्स आ रहे हैं, वो गैप्स को लेकर के हमें बैलेंस बनाने की जरूरत है, करेक्ट। तो वो जो डिसीजन जो ग्रैंड पेरेंट्स का था, वो चाहे वो चॉइस के साथ हो, चाहे वो प्रेशर के साथ हो, वो पेरेंट्स ने किया, लेकिन आज उन्होंने उस मोड को जिया है, उस सर्वाइवल के तरीके से उस चीज को उन्होंने किया, और करने के बाद वो उनके लिए हैबिचुअल हो गए। लेकिन वो ये जनरेशन नहीं करना चाहती है। तो इस जनरेशन के साथ जो बैलेंस बनाने की ज़रूरत है वो यही है कि जैसे जैसे कम्युनिकेशन होने लगेगा, जैसे जैसे उनको लॉजिक क्लियर होने लगेंगे, जैसे जैसे उनकी चॉइसेस को पेरेंट्स समझने लगेंगे, तो वो गैप्स जो है वो कम होने लगेंगे, करेक्ट। एम आई राइट टू गिव योर We agree. आंसर्स और? बट फिर जैसे मैं मतलब मैं ज़्यादा पेरेंट्स पर फिर अब इलीगल चीज़ें भी हो जाती है, या जो हम्म। ऐसे इफ अभी कभी देख लो तो चीज़ें इफ उस टाइम था दाऊरी का, जो हमारे हम्म। पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। अब क्या होता है इज दैट मैरिजेस कई होते हैं, नो डाउट, बट अब क्या होता है कि जैसे चीटिंग हुई या एक्सटर्नल मतलब जैसे क्राइम्स भी बढ़ जाते हैं, लाइक एनीथिंग, जैसे नाउ वी हैड लाइक जो एक कुछ नेबल करके केस था, राइट। तो जहाँ हम्म। पे यू हैड अ कपल हु वाज इन अ लव मैरिज, ठीक है, बट हम्म। सेम केस वही पत्नी मार देती है लड़के को एंड रन्स हम्म। ऑफ विद बॉयफ्रेंड, ठीक है। हम्म। तो फिर हम्म। इधर अंडरस्टैंडिंग इधर why do people get mad if you want to cheat or you want to just run off? Why? ओके, दिस इज अ वेरी ग्रेट क्वेश्चन।
In this case, it is, if I'm not wrong, it is related to that वो जो हिमाचल से आगे वाला केस था, something हाँ like हाँ, that, right? Correct. वही। शादी के बाद. So Sonam was the name of that girl, if I'm not wrong, that case. या So जनरली होता क्या है कि कभी कभी हमें सोसाइटी को लेकर के जो सोसाइटल प्रेशर्स होते हैं ना, कभी कभी हम लोग अपने फैमिली के बीच में अपनी बात उतने तरीके से रख नहीं पाते, जो कि होना चाहिए. आई एम ऑलवेज अगेंस्ट ऑफ दैट थिंग कि नो मैटर व्हाट कॉन्सिक्वेंसेज आर गोइंग टू बी देयर, बट स्टिल आपको अपनी बात रखनी है, चाहे उसका कितना भी कुछ भी गलत आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिले, बट स्टिल रखिए. तो जहां हम अपनी बात नहीं रख पाते हैं ठीक से या कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, तब उस बीच में वो जो गैप रह जाता है और आप अपने दिमाग में ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेते हैं कि नहीं ठीक है, मैं शायद इसका रास्ता इस तरीके से निकाल सकती हूँ, राइट, या मैं इसका रास्ता ऐसे निकाल सकता हूँ कि बहुत बड़ी प्लानिंग करके कि ठीक है शादी के बाद कोई मेरी बात को मान लेगा तो ठीक है, नहीं मानेगा तो ओके फाइन, मैं वहां से निकल जाऊंगी. ये सब चीजें जो होती हैं ना, ये तब होती हैं जब आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता. ये सब चीज़ें तब होती हैं जब आपको अपने पेरेंट्स पे भरोसा नहीं होता, ट्रस्ट नहीं होता, राइट. तो जब आपको, एक सबसे बड़ी चीज़ होती थी कि जब हमें अपने पेरेंट्स पर ना भरोसा होता था पुराने टाइम में, पुराने टाइम की अगर मैं बात करूं, वो कुछ भी खराब करेंगे अच्छा करेंगे पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए ये होता था कि ठीक है पेरेंट्स जो जाने वो कर लेंगे. आज की डेट में चीज़ें थोड़ी बदल गई हैं. पेरेंट्स भी जिस तरीके से चाहते हैं, वो चाहे गुस्सा करके बोले, प्यार करके बोले, कुछ भी करके बोले, वो अपनी तरफ से बेस्ट देना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए. लेकिन उस बीच में कहीं ना कहीं उनकी भी नॉलेज का या उनका लोगों को जो जानने का तरीका है वो कहीं कहीं पीछे छूट जाता है, कहीं कम रह जाता है. बिकॉज ऑफ दैट रीजन, चाहे शादी अरेंज हो या लव, प्रॉब्लम्स कभी भी आ जाती हैं. और उसमें ज़रूरी नहीं है कि हम, अगर अरेंज मैरिज है तो हम पेरेंट्स को फोर्स करेंगे, और जहाँ लव मैरिज है वहाँ पर हम लोग अपनी जिम्मेदारी लेंगे, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है. सो पॉइंट इज कि जहाँ शादी में अगर उसने बाद में वो मार दिया या जिस तरीके के क्राइम हो रहे हैं, इनके लिए साइकोलॉजिकली एक सबसे बड़ी चीज़ होती है, वो है हम अपने आप को पूरी तरह से तैयार नहीं कर रहे हैं. हम नेगेटिवली चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं. हमने अगर अपने आप को तैयार किया, हमने अपने आप को अगर कोशिश की पॉजिटिव साइड में देखने की, तो हमारे पास जितने भी थॉट्स आएंगे, जितने भी हमारे पास सॉल्यूशंस आएंगे, वो सारे पॉजिटिव आएंगे. लेकिन अगर जैसे हमारा मिरर न्यूरॉन्स हमारे लिए जो एक्टिवेट होते हैं, वो जैसा जैसा हम अपने आसपास देख रहे होते हैं, जैसा जैसा हम लोग अपने आसपास सुन रहे होते हैं, हमारा दिमाग भी वैसा वैसा ही काम करने लग जाता है. आप 10 दिन, आप कोई, डोरेमोन का एक केस हुआ करता था, मैं अक्सर बच्चों को बताती हूँ कि डोरेमोन का सीरियल अगर आप 10 दिन देख लो, 10 दिन बाद 11वें दिन ना हमारी लैंग्वेज भी डोरेमोन जैसी होने लग जाती है ना. ए नोमिता, समथिंग लाइक दैट, और हम लोग कभी भी मजे भी लेते हैं उस चीज में. टॉम एंड जेरी की बातें कर ले तो टॉम एंड जेरी के जैसा दिखने लगता है. किसी के साथ हम साथ में रहने लग जाते हैं, 10 दिन बाद हमारी लैंग्वेज भी, हमारे टोन भी वैसे ही होने लग जाती है. सो दिस इज द थिंग कि जहाँ पर मीडिया का इतना ज्यादा असर हो रहा है कि हम लोग जो कुछ भी देख रहे हैं, हम लोग उसमें से कुछ समझना या कुछ उसमें से पॉजिटिव चीजें निकालना तो हम भूल जाते हैं. जैसा जैसा हमारे सामने हो रहा है कि अच्छा ठीक है, मुझे ये नहीं मिल रहा, ओके फाइन छीन लो. मुझे ऐसा नहीं हो रहा है, ओके फाइन ठीक है, ये क्राइम कर दो और आराम से अपने आप को ऐसे प्रूव कर दो, सब चीजें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि हमने मूवीज में देख लिया ऐसा, क्योंकि हमने आसपास हमने देख लिया ऐसा. बट ऐसा नहीं होता. सो पॉइंट इज कि इस तरीके की जो शादी के बाद जो क्राइम है, जो चीज़ें हैं, वो कतई ठीक नहीं है. उन चीज़ों को लेकर के जो यूथ है उसको बहुत गहरे तरीके से सोचना पड़ेगा, और अपनी बातों को अपने पेरेंट्स के सामने या ग्रैंड पेरेंट्स के सामने प्यार से रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है. अगर कम्युनिकेशन गैप है, घर में नहीं हो पा रहा है, तो यू शुड वेट, बट don't take the wrong direction. Now I take my own example. If I like somebody and I told about to my family about it, and when it comes on, I agreed, we dated for a year, but when parents go against that and to the family says wrong word, that things also happen in love marriage, especially because I saw in my own
examples also. That guy was very, very perfectly all right. He had no issues. Chalo, money background was there. When you a parent see and we see as understanding bond, because end of the day we have to stay, not the parents see, but parents see the background image of the family. And second part come societies there in India, which we have to face in the end, but they forget the happiness of the child itself, what the child really want. That why so today in this world, I have gone that experience. Okay. So it is like whether your experience, my experience, or anybody else's personal experiences. I personally want to say on this, पेरेंट्स कभी भी बुरा नहीं चाहते, सबसे पहली चीज़। पेरेंट्स कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते, दूसरी चीज़। पेरेंट्स के डिसीजंस कभी भी रॉन्ग नहीं हो सकते, बट पेरेंट्स के डिसीजंस समटाइम्स कुछ चीज़ों को लेकर के फॉर द टाइम बीइंग हो सकता है कि वो बैलेंस ना हो या फिर वो चीज़ें जो हैं वो डार्कनेस में हों, करेक्ट? द मोमेंट दोज थिंग्स कम्स इनटू द लाइट, पेरेंट्स को भी रियलिटी समझ में आती है, चीज़ें भी समझ में आती हैं। लेकिन यूथ के लिए यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज़ है जो समझने की है, वो ये है कि उन्होंने हमें एक्सपीरियंस्ड लोग क्यों चाहिए होते हैं, किसी भी फील्ड में। एक्सपीरियंस्ड लोग इसलिए चाहिए होते हैं क्योंकि जब हमारे सामने जब चीज़ गड़बड़ होने जा रही होती है, तब एक्सपीरियंस जो है ना, वो आपका इतने सालों का काम आता है, ठीक है? कोई भी बिना एक्सपीरियंस के फ्रेशर्स को लोग रखते हैं, तो फ्रेशर्स को हमेशा नीचे वाली टीम में रखते हैं या फिर उनको चीज़ें सिखा रहे होते हैं। लेकिन फ्रेशर्स को कभी भी कोई बहुत बड़े वाली चीज़ों पर नहीं ले जाता। एक सबसे बड़ी चीज़ होती है, एक हमेशा मैं बात करती हूँ, वो है नॉलेज। नॉलेज के बाद आती है स्किल, उसके बाद आती है बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अगर नॉलेज ही नहीं है, तो आप कितने भी बड़े अच्छे पोस्ट पे पहुँच जाएँ, चाहे आपके पास मनी की वजह से आपकी दुनिया देखी है, आप घूमने गए हैं, आपने चीज़ें की हैं, नॉट नेटवर्किंग है, सब कुछ है, आप कुछ भी कर लें। चाहे आप कितने अच्छे रिलेशंस बना लें, आपको चाहे कितना अच्छा लड़का या लड़की पसंद आ जाए या कुछ भी हो जाए। लेकिन जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास एक्सपीरियंस है ना, वो कभी भी मात नहीं खा सकते। वो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन अच्छा ही निकालेंगे बाद में, ठीक है? तो ये एक यूथ के लिए बहुत बड़ी चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि उनको हमेशा अपने पेरेंट्स को ट्रस्ट तो करना पड़ेगा, राइट? अब रही बात पैसे का या बाकी चीज़ों का, वो एक पेरेंट्स का एक अपना खुद का एक अपना पर्सपेक्टिव होता है क्योंकि वो अपने बच्चे के लिए कभी भी, जैसे आप अपना केस बता रही हैं, तो फिर उसके हिसाब से ये है कि वो हर पेरेंट ये चाहता है कि मेरा बच्चा खुश रहे, अच्छा रहे, तो इसको आप खुद सोच के देखिए, आप किसी भी जॉब में जाएँगे, अगर मैं कहूँ आपसे कि मैं आपको 3,000 रुपए दूँगी और एक तरफ मैं कहूँ आपको 30,000 रुपए देंगे। आप ऑब्वियसली 30,000 वाली जॉब को चूज़ करेंगे ना, 3,000 वाली को नहीं करेंगे। तो इट इज़ अ वेरी सिंपल फैक्ट कि जहाँ पर चाहे कितना भी अच्छा चीज़ दिखाई दे रही हो, वो हमें रियल ज़िंदगी तब समझ में आती है जब हम अपने बेडरूम्स शेयर करते हैं, जब हम अपनी ज़िंदगी किसी के साथ शेयर करने लगते हैं और वही चीज़ एक्सपीरियंस से आती है। तो इसलिए उन लोगों के जो डिसीजंस हैं या उन लोगों की जो कहना है या उन लोगों की जो चीज़ें हैं, उसको डिनाय ना करते हुए बेशक उसके साथ बैलेंस बिठा सकते हैं, चीज़ों को बता सकते हैं, वेट कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि हाँ, ठीक है, हो सकता है उन्होंने कुछ प्रोज़ एंड कॉन्स दिए होंगे, तो उन चीज़ों पर हम कैसे उन चीज़ों को समझने के बाद कैसे हम उन पर नॉट रिएक्शन बट अपने रिस्पॉन्सेज़ कैसे हम दें उनके साथ में, कैसे रिस्पॉन्ड करें हम। तो आप अगर वो देंगे तो ज़रूर पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा और आपको खुद को भी अच्छा लगेगा कि हाँ, हमने किसी चीज़ को आखिर आखिर ज़िंदगी का सवाल है ना, पूरी ज़िंदगी का सवाल है। आप खुद सोच के देखिए कि आपने अभी थोड़ी देर पहले जो केस बताया कि वो किसी ने शादी के बाद किसी को मार दिया या वो क्राइम हो गया या चीज़ें हो हुँ। गईं। तो वो रिबेलियस जो हुआ पर्सन बाद में या उसने जो रिवेंज लिया, वो एक तरीके से पूरी सोसाइटी के साथ रिवेंज ले लिया ना। एक वो जैसे रिलिजन भी अफ़ेक्ट करता है इन अ बैड वे, हुँ। कहीं भी कुछ होता है जैसे
कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी मूवी, हम्म। वो if you want to marry someone, the person might force you to convert into their religion. करेक्ट। जो मेरे दिमाग में वो होता है, क्यों करते हैं, why? वो मेरे ख्याल से वो चीजें एक्चुअली, ये थोड़ा सा इस प्लेटफॉर्म पर जो चीजें हैं इसको बात करने के लिए, ये नहीं, सबकी अपनी बट not साइकी है। no, बट ये अपनी but साइकी है, अपना मेंटल स्टेट है। व्हेन दे somebody हैव द इनसिक्योरिटी, राइट, तो वो चाहेगा कि वो सामने वाला मेरे हिसाब से जिए, मेरे हिसाब से करे, बिकॉज उसका रियल सेल्फ जो है वो सामने वाले को पता ना चले। तो अब मुझे dominance. मालूम है कि आपका रिलीजन अगर बहुत अच्छा है, या आपके हम्म, रिलीजन को ओवरऑल बहुत अच्छे से देखा जाता है, या आपके रिलीजन को बहुत अच्छे से समझा जाता है, और अगर मुझे इनसिक्योरिटी है, तो शायद मुझे अंदर ही अंदर लगेगा कि मैं अपने रिलीजन को, या अपनी चीज़ों को, या अपने नॉर्म्स को, अपने रूल्स को, या अपने घर के ट्रेडिशंस को मैं कैसे हाईलाइट करूं। करेक्ट। तो वो हाईलाइट करने के चक्कर में हमारी जो माइंडसेट है, जो हमारा साइकी है, वो इस तरीके का बन जाता है कि हम सामने वाले को नीचे दबाने की कोशिश करते हैं। सिंपल है ना, कि हमें अगर किसी से, अगर हमें कोई खतरा ही नहीं है, तो हम क्यों दबाएंगे किसी को। हमें तो खतरा है तभी बेसिकली तो हम काइंड ऑफ दबाते हैं। लाइक अ डोमिनेंस टाइप ऑफ फिर चलता है ना. डोमिनेंस इसीलिए है क्योंकि वो अपने अंदर की इनसिक्योरिटी है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं अगर रिलीजन की बात करूँ, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शायद मुस्लिम हैं, और हिंदूज में शादी हुई है, और किसी ने किसी का रिलीजन चेंज नहीं कराया। बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पर्पसली ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट टू स्प्रेड दी नेगेटिविटी, जस्ट टू टेक द रिवेंज। भाई. कई बार ऐसी चीजें होती हैं, और अब आप धर्म छोड़ो, जातियों में भी ऐसा होता हाँ. है ना। लोग सरनेम चेंज कराते हैं, कई बार लड़कियां सरनेम चेंज नहीं करती हैं, कई बार लोग प्लेस के हिसाब से चीजें कर लेते हैं कि आपको मेरे हिसाब से ही रहना पड़ेगा, मेरे हिसाब से करना पड़ेगा। वाई, क्यों रहना पड़ेगा, सब अपने हिसाब से रह सकते हैं ना। जिसको पूजा करनी है वो पूजा करो, जिसको नमाज पढ़नी है वो नमाज पढ़ो, जिसको कहीं और जा करके गुरुद्वारे में जाके मत्था टेकना है वो गुरुद्वारे में जाके मत्था टेको। बट हम जब पर्सन के अंदर अपना एक डोमिनेंस पैदा करना चाह रहे हैं, राइटली यू सेड, एंड जब हमें अपनी इनसिक्योरिटीज हो रही हैं, तब हम कोशिश करते हैं कि सामने वाले के ऊपर हमारा कंट्रोल हो। करेक्ट। हम्म. Old time intercaste marriage was not allowed. Today, well, intercaste marriage also happened, but still today I see people still not refuse that हम intercaste marriage नहीं करेंगे. Why so today in the world is like this? I've been noticing around me. बहुत सारे लोग इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत सारी नई चीजें उन्होंने नहीं देखी हैं, तो इसीलिए उनका रेसिस्टेंस आता है सबसे पहले। और कई बार इसलिए भी होता है क्योंकि जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की इसमें, कि जब हमारी इंटरकास्ट मैरिज होती हैं या इंटर स्टेट मैरिजेस होती हैं, आप एक परिवेश में पले बड़े हैं, एक आप अपनी एक आपकी अपनी कल्चर रही है, एक आप अपना ट्रेडिशंस रहा है, आपके अपने घर के अपने नॉर्म्स रहे हैं। आप जब दूसरी जगह जाते हैं, स्पेशली जब गर्ल्स के पेरेंट्स के साथ ज़्यादा होता है कई बार, या ऑब्वियसली दोनों साइड की बात भी कर सकते हैं हम इसमें, तो वो इसलिए भी होता है क्योंकि गर्ल्स के पेरेंट्स को तो ये टेंशन रहती है कि हमारी बेटी वहां जाकर के पता नहीं कैसे एडजस्ट करेगी, क्या होगा, बात बात पर कोई कुछ कह ना दे, उसका कुछ अपना एडजस्टमेंट इश्यूज ना आ जाएं। और लड़कों की साइड में इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, उन लोगों को इस बात की टेंशन होती है, फैमिली मेंबर्स को इस बात की टेंशन होती है कि हमारा जो एक कंट्रोल हमारे बेटे के ऊपर है, या हमारा बेटा है, या समथिंग लाइक दैट, तो वो कहीं चीजें छूट ना जाएं हमसे। तो अगेन व्हाट इज दिस, कंट्रोल। तो कंट्रोल वाली चीज के लेकर के ही बार बार दोनों साइड से होती हैं ये चीजें। तो चाहे वो इंटरकास्ट हो, चाहे वो इंटर स्टेट हो, चाहे वो इंटर रिलीजन हो, यहाँ हर जगह हर बात पर यही एक बात आती है, और वो है कि people want their own control on the things, on the people, on the situations, on the conditions। तो वो उस कंट्रोल को पाने के चक्कर में
अंदर की जो इनसिक्योरिटीज हैं उनका वो बिहेवियरल जो जो डिसीजन जो उनके होते हैं वो इस तरीके से निकल के आते हैं। पर जैसे कंट्रोल नहीं हो किसी के पास, जैसे एक पेरेंट या कोई भी if उनके पास कंट्रोल नहीं हो या वो कंट्रोल छीन लेते हैं तो क्या होएगा? उनकी लाइफ तो नहीं है ना। इफ आई एवर मीट अ पर्सन हाइपोथेटिकली, मेरी खुद हम्म। की चॉइस है, मेरी लाइफ है, मेरे पेरेंट्स कहाँ जाते हैं उसमें? कंफ्यूज। ये बेटा मेरे ख्याल से इसके लिए एक बहुत सीधा सा आंसर है कि आपकी लाइफ है, आपकी चीज़ें हैं। जब बच्चा 2 साल का होता है, 1 साल का होता है, और जब उसको कहना है, बार बार चिल्लाना है कि मुझे आग में जाना है, मुझे मुझे गैस छूनी है, तो मदर जो है वो कुछ भी करेगी, उसको 2 चांटे मारे, थप्पड़ लगा करके उसको बिठा दे, कुछ भी कर दे, क्योंकि बच्चे को तो नहीं समझ में आ रहा है ना उस टाइम, है ना। बच्चे को तो सिर्फ इतना ही समझ में आ रहा है कि मुझे मेरा पसंद चाहिए, राइट। और जब डिजायर्स कंप्लीट नहीं होती, हमारी डिजायर्स पूरी नहीं होती, तब हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशंस बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस यूथ के लिए एक सबसे बड़ी चीज है समझने की कि आप जो करना चाहते हैं कीजिए, आप आसमान छूना चाहते हैं आप छूइए, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी चीज याद रखिएगा कि कल को आप भी उस एज से थोड़ा सा बड़े होंगे, देन व्हाट विल यू हैव टू पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। क्या रूट्स होंगी आपके पास, क्या कल्चर होगी आपके पास, क्या ट्रेडिशन वैल्यूज होंगी आपके पास में, क्या नॉलेज होगी आपके पास में, क्या चीजें आप बताएंगे आप नेक्स्ट जनरेशन को। देयर विल बी द वॉइड गैप। एंड अगर आप अपने पेरेंट्स की चीज़ों को समझते हैं, बैलेंस बनाते हैं, बात करते हैं, झगड़ा हो, चीज़ें हो, कुछ भी हो, कम्युनिकेट करते हैं, उनकी भी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, सो यू विल हैव समथिंग, एक ट्रेजर तैयार होगा आपके पास में। आपकी लाइफ तो है, लेकिन आपकी लाइफ 1 साल पर भी तो थी ना। लेकिन जब 1 साल पर आपको जो चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, आज वो एग्जाम्पल तो समझ में आ जाएगा कि नहीं नहीं, वो बच्चे को तो इसलिए क्योंकि वो आग में जा रहा था इसलिए माँ ने बचा लिया। आपको वो आग आज की डेट में इनडायरेक्टली पता नहीं चल रही ना कौन सी आग है ना। वो वाली आग तो पेरेंट्स को पता चल रही होगी, हो सकता है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि 200% पेरेंट्स सही होते हैं, मैंने इसीलिए पहले ही बोला कि पेरेंट्स कांट बी परफेक्ट। वो अपने सर्वाइवल मोड से निकले हुए हैं, उन्होंने बहुत चीजें देखी हैं, तो वो नहीं चाहते किसी भी एंगल पर कि मेरे बच्चे वो गलतियां करें, या मेरे बच्चे वो उस प्रॉब्लम को देखें, या मेरे बच्चे उस परेशानी में, उस दुख में जाएं। दिस इज द ओनली कंसर्न दे हैव इन देयर माइंड। वो इमोशनल सेफ्टी अपने बच्चों को देना चाहते हैं, वो उनको पार्टनरशिप समझाना चाहते हैं, राइट। लेकिन उनका तरीका थोड़ा सा मॉडर्न नहीं है, इसलिए बच्चों को, या इसलिए आप जो यूथ है उसको वो तरीके से प्रॉब्लम होती है। अंदर ही अंदर वो बच्चे भी या यूथ भी जो है वो अपने पेरेंट्स को तो रिस्पेक्ट कर रहा है, खूब प्यार कर रहा है, बट उसकी लड़ाई झगड़े हो इसीलिए रहे क्योंकि उसको वो तरीका समझ नहीं आ रहा है अभी। जैसे कि बचपन में 1 साल वाले बच्चे को समझ में नहीं आ रहा था। Lot of families want them to follow their tradition, like wearing saris, suits. But today's generation don't want to wear suits, saris, everything. They want to be comfortable. But the boy side family force you to wear that हमारे ट्रेडिशन में ये है. But some families today in the world say अच्छा बच्चा आप हमारे ग्रैंड डॉटर नहीं हो, डॉटर हो, not daughter in law. But there are few people want to treat you like a daughter-in-law, because one of my cousin has faced that issues which we हम्म। face. You get married, you get a child, and the problem starts like बच्चों को मैं नहीं पालूंगी, but the responsibility has to do with all each other together. But I've been seeing that, and things are getting divorced also after that also. Why today world is seeing that they're getting married, then they're getting divorced. आज के टाइम में शादी टिक रही नहीं है, which my करेक्ट। parents and my family started making me understanding daily basis, but I start ignoring because this is can't be listened every day. आज के टाइम में ये सब कुछ भी है. वेरी ट्रू। एंड दिस इज द, यू नो, डार्क रियलिटी।
आज की सोसाइटी में ये एक आई वुड से कि शादियां नहीं टिक रही हैं। एक्चुअली हर बार हर जगह पर ये 50-50 होता है, हर हर एरा के साथ में अगर कह सकते हैं। तो देर आर टू थिंग्स। वन इज जहाँ पर शादियां नहीं टिक रही हैं, जहाँ पर बहुत सारा नेगेटिविटी है, जहाँ पर जो बॉयज़ फैमिली है वो बहू को बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए प्रेशर दे रहे हैं। एट द सेम टाइम लाइक यू सेड कि जहाँ वो बहू को अपना बेटी की तरह ही मान रहे हैं, उसकी भी चीज़ें सुन रहे हैं, उसको भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो बेसिक डिफरेंस इज बेसिकली कि जब हम सामने वाले की चॉइसेस को रिस्पेक्ट करते हैं, जब हम सामने वाले के साथ कम्युनिकेट करते हैं, जब सामने वाले की जो आइडेंटिटी है उसको हम एक्नॉलेज करते हैं, तब हम पॉजिटिविटी में होते हैं, राइट? तब हमें ये चीज़ समझ में आती है कि ओके, जो जो हमारी मैरिज है, वो मैरिज में सबसे पहली चीज़ आती है, फर्स्ट थिंग इज दी यू नो पार्टनरशिप। जब दोनों के बीच में पार्टनरशिप बहुत अच्छी होगी, बहुत स्ट्रांग होगी, एक दूसरे की लैंग्वेज को वो समझ सकते हैं, एक दूसरे की लव लैंग्वेज क्या है, एक दूसरे का ओके उनके डार्क साइड्स क्या हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, जब वो एक दूसरे की उन चीज़ों को समझते हैं कि इसका अनकंफर्ट जोन क्या है, कंफर्ट जोन क्या है, या उसको किस चीज़ की चीज़ें चाहिए, जब ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं, जब जब वो सामने वाले के अपना पार्टनर्स जब एक दूसरे के सामने विदाउट विदाउट फियर ऑफ जजमेंट, विदाउट अ फियर ऑफ गेटिंग कंट्रोल, जब वो लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो वो पार्टनरशिप स्ट्रांग होगी। और जब पार्टनरशिप स्ट्रांग होगी तो फैमिली का जो माहौल है वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होने लगेगा, बिकॉज आपके पास एक पर्सन होगा आपको हेल्प करने के लिए। जब फैमिली अगर मान लीजिए पूरी तरीके से आपको टोक टोक करती है कि हाँ, आपको ऐसे कपड़े नहीं पहनने, ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, तो इट मीन्स कि अगेन दे जस्ट वांट द कंट्रोल। ठीक है, उनको अपनी चीज़ें करानी है, अपनी चीज़ें बोलनी है, उनको सोसाइटी का प्रेशर है कि हाँ वो सोसाइटी में ये बोल सके, फियर ऑफ सोसाइटी जिसको बोलते हैं, या फियर ऑफ जजमेंट हम जिसको कह सकते हैं, कि हाँ कोई हमें ये ना कह दे कि अच्छा हमने तो इतना इतना घूंघट किया था, या हमने तो बड़ी बड़ी साड़ियाँ पहनी थी, आज हमारी जो बहू आई है या हमारी जो डॉटर इन लॉ है वो शी इज़ वेयरिंग दैट काइंड ऑफ अ ड्रेस, राइट? सो वो हमें जवाब ना देना पड़े, हमें बोलना पड़े, हम फेक फेक उसमें चलें कि नहीं नहीं हमें बहुत अच्छा घर मिला है, मेरी बहू बहुत अच्छी है, चीज़ें बहुत अच्छी है। सो दैट काइंड ऑफ शो ऑफ वाला जो चीज़ है, या दैट काइंड ऑफ फेक रियलिटी को शो करना जो है उनके लिए, वो उनको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती है। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम जब हम अभी एक और पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, जहाँ पर चीज़ों को लेकर के सब लोगों के बीच में अगर हेल्दी एटमॉस्फेयर है, सो दे आर जस्ट आस्किंग ईच अदर्स desires, each other's choices, तो वहाँ पर वो लोग ऑटोमेटिकली उन सब चीज़ों के पास धीरे धीरे बात करते हुए वो अपने माहौल को भी ठीक रखते हैं, चीज़ें भी करते हैं, एक दूसरे की बातों को भी समझते हैं, और रिस्पेक्ट देते हुए वो चाहे कोई भी ड्रेस पहनो, चाहे चीज़ें करो, वहाँ छोटा मोटा इधर उधर का वो कहते हैं ना, चार बर्तन होते हैं वो खटकते ही हैं, तो वो तो ठीक है चल जाता है, बट बड़े तौर पर चीज़ें गड़बड़ नहीं होती हैं। जैसे मैं मेरे को जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे आप लोग कोई भी पार्टनर हो, स्पाउस होता है, इफ हम्म। कोई शादी हो जाए तो द कोई पार्टनर में से तो क्या हो कोई जाए, तो सॉरी? क्या लाइक हो जाए? हमारे लाइक इफ हमारे कोई पार्टनर्स हो, स्पाउस हो, राइट? हम्म। After marriage, that person can change into 360 degree. Before marrying, that person was different, and after marrying, he was different or she was different. क्यों? Other than control, which होता है, either उनको पता चल जाता है कि हाँ ये मेरे कंट्रोल में है, उसके अलावा तो मेरे को समझ नहीं आता कि क्यों करते हैं। नहीं, ये तो चेंज होना इज डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशंस, द एक्सपीरियंसेस, एंड इट कैन बी फ्रॉम बोथ द साइड्स।
जहाँ पर कई बार होता है कि हम अपनी तरफ से अपनी चीज़ें करे जा रहे हैं, हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ज़रूरी तो नहीं ना कि मेरा अच्छा करना सामने वाले के लिए भी अच्छा हो, करेक्ट? तो अगर सामने वाला दूसरी तरीके से, उसको इनिशियली तो अच्छा लगा लेकिन बाद में हो सकता है उसको प्रेशर लग रहा हो सकता है उसको समझ ही नहीं आ रही हो मेरी लैंग्वेज, हो सकता है उसको मेरा केयर करना पसंद ही ना आ रहा हो सकता है वो कहीं और बिज़ी हो सकता है उसको कहीं और टेंशन्स हों, हो सकता है किसी और की एक्सपेक्टेशंस भी हों घर में। सो यू नो, किसी का भी चेंज होना ऑटोमेटिकली नहीं होता है, एकदम से सडन नहीं होता है। किसी का चेंज होना इज़ लाइक स्लो प्रोसेस, जहाँ पर अगर कोई बिल्कुल ही जिसने ठान लिया है कि नहीं, मुझे मैंने ये शादी ज़बरदस्ती की है या मेरे पसंद से नहीं है, तब तो वो दूसरे दिन ही चेंज हो जाएगा और एकदम सडन चेंज हो जाएगा और चीज़ें हो जाएँगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप ढूँढते रहो वो रीज़न। बट कई बार उसकी साइलेंस जो है, वो बहुत कुछ कह रही होती है, तो वो दूसरे पार्टनर को समझना पड़ता है। दूसरे पार्टनर को वो वक़्त देना पड़ता है, उसकी साइलेंस को समझने के लिए कि व्हाई दिस पर्सन इज़ डूइंग लाइक दिस, ठीक है? कई बार किसी-किसी के साथ होता है कि जो अपने जॉब में होते हैं, फीमेल्स हैं या मेल्स हैं, कोई भी हैं, वो हस्बैंड या वाइफ अगर मान लीजिए अगर अपने जॉब में हैं, हो सकता है उसको बहुत प्रेशर हो अपने जॉब से। हो सकता है वो अपने प्रोफ़ेशन को लेकर के कुछ अच्छी चीज़ें करना चाहता हो, लेकिन उसको यहाँ घर से प्रेशर्स हो रहे हों, या लड़की अगर अच्छा करना चाह रही हो, उसको घर से बहुत ज़्यादा अपने आप को अम, बिल्कुल घुटन में फ़ील कर रही हो। सो वी डोंट नो द थिंग्स बिकॉज़ एवरीबॉडी इज़ डिफरेंट, एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट। एंड वो डिफरेंसेस जो हैं वो बात करके सुलझाए जा सकते हैं। वो किसी के बिहेवियर्स को देख करके, उनके एक्शंस को देख करके हमें कभी-कभी इंडिकेशंस मिलते हैं। ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ हम समझ सकते हैं कि उनकी इमोशनल नीड क्या है। एवरीबॉडी हैज़ दैट डिफरेंट काइंड ऑफ नीड्स, ठीक है? तो उनकी अगर हम उनकी इमोशनल नीड्स को अगर हम समझने की कोशिश करें, उनकी और दूसरी कौन-सी नीड्स हैं जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, वो उनको समझने की कोशिश करें, तो चीज़ें बेटर भी हो सकती हैं। Through dating apps, I am both of us on our dating apps. We are talking to a lot of people, but they have different mindset. Some people want very casual dates. They want sex. They want these more today's world. They don't want to take a responsibility or that the new girl or new person going to be coming into new house, because I am seeing that because every day different people have different. Some people want long term relationships, they want, some people want life partners, some people want just sex. They are on dating apps for just for sex. They don't want to have any conversation knowing that girl or knowing that person or knowing that person. Straightly हुँ, they will हुँ। unmatch or they will just, I don't know why are they, because there are a lot of people today in dating app. They put something else as professionally, and when we talk to him or talk to that person, we get to know a different profession. Why is that today in the world? Or, but not particular dating app, in general also, because I've been seeing that. ओके, सो एवरीबॉडी हैज़ अ डिफरेंट वायरिंग, ठीक है? क्योंकि 2 सिबलिंग एक जैसे नहीं हो सकते घर में, या 4 लोग घर में जब बैठते हैं, तो वो एक जैसे हो सकते हैं क्या? नहीं। नहीं हो I don't सकते। think so. But करेक्ट। sometimes it is not possible. My sister will be the same like me, or my sister will be same just like her. नो, सी 10%, 20%, 30% चीज़ें सेम हो सकती हैं, बट तब भी 70% चीज़ें डिफरेंट होंगी, ठीक है? और डेटिंग ऐप्स में भी कोई भी इतनी जल्दी वहाँ किसी के साथ में, जब हम शादी के बाद हम कहते हैं कि कोई पर्सन कैसे चेंज हो जाता है बाद में, या मैंने बोला आपको कि क्यों हम बार-बार जो चीज़ें बात कर रहे थे, क्यों पेरेंट्स, एक एक कहावत हुआ करती थी, आई डोंट थिंक सो कि आप लोग उन चीज़ों को ऐड ऑन करेंगे अपनी लाइफ में या समझेंगे। लेकिन हमारे यहाँ ये कहा जाता था कि जब एक कोई पर्सन चलता है,
उसकी चाल से, उसके कपड़ों से, उसकी नज़र से, उसके बात करने के तरीके से पता चल जाता है कि वो कौन से परिवार से बिलोंग करता है। ठीक है, कौन से खानदान से है, कौन से घर से है, कौन से गांव से है। कई बार That's लोग true. टर्बन पहनते थे, अपनी पगड़ियां पहनते थे, उन पगड़ियों से पता चलता था ये कौन से गांव से आ रहा है। ठीक है, ड्रेसिंग सेंस में जैसे अब होता है ना, आज की डेट में पता चल जाता है कि अगर किसी ने अपने कल्चरल ड्रेसेस पहने हुए हैं अपने, तो उनसे पता चलता है ना कि ये अच्छा ओके इस स्टेट से बिलोंग करता है। ठीक है, द सेम थिंग अभी यहाँ डेटिंग एप्स में वो सब चीज़ें नहीं पता है हमें। डेटिंग एप्स में तो आपको ये भी नहीं पता है कि अपना कोई रियल नाम भी लिख रहा है या नहीं लिख रहा है। तो क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज हैं, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट थिंग हम कुछ भी कर रहे हैं, हम कुछ भी करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। डेटिंग एप्स का जो यूज है वो आप खुद अपने लिए डिसाइड कीजिए ना। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विल बी द सेम, यू कैन चेंज अदर पीपल, सो यू कैन चूज योर ओन थिंग्स। मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, दिस इज बैड फॉर मी, दिस इज गुड फॉर मी, नथिंग इज बैड, नथिंग इज गुड। बट आपके अपने प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं वो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं जब सामने होती हैं तो आप ऑटोमेटिकली उन चीज़ों में आ जाते हो कि हाँ ठीक है, कैसे हम अ, अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। और जब वो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तब बैलेंस से बाहर हो जाती है चीज़ें, कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए गिल्ट, ब्लेम, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशंस का कारण बन जाती हैं। uh, मेरे को समझ थोड़ा सा हम लोग के मतलब बॉयज डिफरेंट होते हैं थोड़े से। इफ ब्रिंगिंग अप एनी पेरेंट्स कोई बच्चा पैदा करवाता है, हम लोग को डिफरेंट ट्रीट करवाते हैं। ओके, एंड इन मैरिज ऑल्सो you're raising a kid, but जो values होते हैं is different. Why is that? It सॉरी, might कम अगेन, कम अगेन, reflect आई जस्ट डिडंट गेट योर like in our parents, हम्म। my parents or whatever, हम लोग की value, because I have a brother, my values are different and my brothers are a little bit different, but they can reflect on the relationship I might get into the future. And that reflection might be in a negative way or in a positive way, but वो अभी पता नहीं होता, या हम मेरे को लगता है अनफेयर होता है जैसे। In a very simple way, today's world, which I have understood, is that whatever the elder person or elder daughter or elder brother has all the rights to find a guy for a girl for every kind of situations. When it comes to the younger child today in the world, the parents want them to follow the way they want. चलो बड़ा तो हमने फ्री कर दिया है, वो जो करे लाइफ पे इट्स परफेक्टली गुड, whoever they want to get married. With our kids we have learning disability and those kind of thing. They're more like you will not do what you want, and we can both of us can see that happening. If I'm scared to tell papa that I want to meet this guy because he might not able to understand why I'm saying, but the case happened just latest and I know that I really like them. He was nice person, he was a good human being. It comes about standard, pesa, money, background, family background. End of the day I agree that is more important, but at the same time we have to say this with that family or with it is this world becomes very difficult to make them understand. But for the elders it's all like free, do whatever you want in your career, your dating apps, or you can go meet. When it comes to younger crowd or younger sisters or younger brothers or what etc, has like ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे करना है, वैसे करना है, यहाँ नहीं जा सकते हो, ऐसे मिलना है, वैसे करना है. The talk of is more today in the world,
and that is for me is become difficult. For me, I'm talking about, but today Hmm. everybody has different mindset of today, which both Okay. of us want to speak out. So it's good to hear your side also, because एक सबसे बड़ी चीज होती है परसेप्शन. परसेप्शन इज द वर्ड जहां पर बहुत सारी चीजें निकल करके आती हैं. भगवान ने हमें ये दो आंखें दी हैं, दो कान दिए हैं. हम जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी सुनते हैं, उसको समझने के लिए हम अपना माइंड खुद का यूज करते हैं. सामने वाले ने जो कहा या जो उसने किया, वो उसने किया. हमने उसका इंटरप्रिटेशन किया है अपने अपने माइंडसेट के साथ. ठीक है. तो जो इंटरप्रिटेशन है वो आपका अपनी सोच के हिसाब से है, और आपकी सोच हमेशा आपके अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ तैयार होती है. आज अगर मुझे किसी गली में जाने से डर लगता है, तो इट मीन्स कि मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं कि मुझे उस गली में पक्का कुछ ना कुछ मेरा पास्ट एक्सपीरियंस खराब हुआ है. मुझे अगर किसी पर्सन के पास जाने से अच्छा लगता है, मुझे उसके साथ बैठने से अच्छा लगता है, इट मीन्स कि मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं कि मैं उस पर्सन के साथ जब बैठी तब मेरे चीज़ें अच्छी हुई. करेक्ट. तो उसके अलावा अगर कोई चीज़ें होती हैं, तब वो एक्सपीरियंसेस हमारे अच्छे या बुरे जो रहे, उनकी वजह से हमने जो भी डिसीजंस लिए या जो भी सोच बनाई या जो भी चीज़ें की, इसमें ये कहीं नहीं आता कि हमारे जो सिबलिंग्स हैं वो बड़े हैं या उनको पूरे राइट्स दिए गए हैं. ऐसा कुछ नहीं है. ये भी एक हमारा परसेप्शन है. ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, क्योंकि अक्सर होता है ऐसा, दो दो लोग जो दो हमारे बच्चे जो होते हैं, उनके बीच में ऐसा होता है कि अगर 2 साल का भी गैप है, उसको अगर बोल दिया गया कि देखिए बड़ा है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, तुम बड़े भैया को या बड़ी दीदी को मान लो. लेकिन साथ के साथ हमें ये भी सुनना चाहिए कि हम उसको भी बोलते हैं कि छोटा है, कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो, उससे ऐसे मत बात करो या उसको ऐसे मत करो या उसका भी रिस्पेक्ट करो. I can agree and I understand your things, because there are families जहाँ पर चीज़ें थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं. चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं माने कि वो डिफरेंट जोन में चली जाती हैं, क्योंकि उनको लगता है बड़ा बच्चा अगर समझदार हो गया, बड़ा बच्चा कभी गलती नहीं करेगा, तो बड़े बच्चे के ऊपर उठाओ और सारी की सारी चीज़ें लाद दो. तो जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जो हमारा पार्ट है, हमारे शोल्डर की जो चीजें हैं, वो हमने बड़े बच्चे को उठा के दे दी. इसीलिए हम क्या करते हैं, हम ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि नहीं ये सही है, ये कर रहा है, आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो. बट अंदर ही अंदर आपको छोटे को ये समझना पड़ेगा कि पेरेंट्स शायद उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे करके उसको भी ठीक करने की कोशिश कर रहे होंगे. ऐसा नहीं है कि 100% उससे भी ट्रस्ट कर रहे होंगे या 100% उसको भी समझ रहे होंगे. वो कुछ ना कुछ अपनी और प्रॉब्लम्स लेकर के भी जी रहा होगा, बड़ा वाला जो है. ठीक है. अब बात आती है कि दोनों के बीच के डिफरेंसेस जो हैं, जो वैल्यू सिस्टम के लिए आपने बात की थी, या वो जो चीजें थी, शादी की भी जो बात की आपने. शादी जो है ना, उसका मतलब जो पहले हुआ करता था, जिस माइंडसेट से मैं या हमारी जनरेशन्स को जो समझ में आती थी चीजें, वो होती है लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए शादी. लाइक आपने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि शादियां क्यों टूट रही हैं. वो इसीलिए टूट रही हैं क्योंकि पहले हमारे दिमाग में एक सबसे बड़ी चीज होती थी, वो होती थी कि किसी भी कीमत पर शादी को हमने स्टेबल रखना है, स्टेबिलिटी होनी चाहिए. ठीक है. तो Hmm. जो मेल है या जो हस्बैंड है या जो घर का कोई भी लड़का है, बड़ा है, उसके अंदर वो प्रोवाइडर वाली फीलिंग थी. ठीक है. हाँ. कि मुझे सब कुछ प्रोवाइड कराना है. तो वो उसके इमोशंस क्या होते थे, बाकी इमोशंस उसको दिखाने नहीं आते थे. ठीक है. आपको पैसा चाहिए, मिल जाएगा. आपको ये चीज चाहिए, मिल जाएगी. आपको वो चीज चाहिए, मिल जाएगी. लेडीज जो होती हैं, यानी कि जो गर्ल होती थी या वाइफ होती है, उसके दिमाग में होता था केयर करनी है मुझे. तो वो केयरिंग नेचर के चक्कर में इसके लिए खाना बनाना है, इसके लिए ये करना है, इसके लिए वो करना है, अपनी ड्यूटीज करनी है, ये सब पेशेंस के साथ में करना है. अगर थोड़ा भी गुस्सा किया तो फिर मेरे को सोसाइटी ऐसा बोलेगी, घर वाले ऐसा बोलेंगे, वैसा बोलेंगे. सो व्हाट डज इट मीन, स्टेबिलिटी आएगी. बस स्टेबिलिटी होनी है, यानी सर्वाइवल मोड पे चले जा रहे हैं सब लोग. ठीक है. आज की डेट में क्या हो गया है, आज की डेट में हर चीज जो है वो आपके अपने
अपने नीड के हिसाब से, अपने लव के हिसाब से, अपनी चीज़ों के हिसाब से आप तैयार करने की कोशिश करते हो। तो जो चीज़ हमारी कैटेगरी के अंदर नहीं आ रही है, हमारे फ्रेमवर्क के अंदर नहीं आ रही है, वो उसको हमें फिल्टर करना है, तो हम कैसे फिल्टर करेंगे? हम उसके अंदर क्वेश्चन मार्क लगा के फिल्टर करेंगे। ये मेरे काम का नहीं है, क्योंकि ये खराब है, क्योंकि इसने अच्छा नहीं किया, क्योंकि इसने मेरी बात नहीं मानी, क्योंकि ऐसा हो गया। तो जो अप्रूवल जो चाहिए वो हमें सोसाइटी से चाहिए, अपनी शादी के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, और जो हैप्पीनेस चाहिए अपनी, वो हमें अपनी नीड्स के हिसाब से चाहिए। अब इन चीज़ों के बीच का गैप तो हम कभी ठीक कर ही नहीं रहे। करेक्ट? गैप नहीं मिल रहा है, या मतलब लोग ढूंढते हैं, पर गैप मतलब इधर सोसाइटी को एक्सेप्ट करने के लिए कुछ सैक्रिफाइस करना होता है, which इट इज may नॉट be काइंड ऑफ सेक्रीफाइस, इट इज नॉट काइंड ऑफ सेक्रीफाइस। ऐसा लोग कहते हैं कि हाँ मैंने हाँ, सेक्रीफाइस किया, या ये हुआ या वो हुआ। इट इज द काइंड ऑफ अवेयरनेस, अवेयरनेस बट होनी चाहिए। हाँ, बट उसमें फिर आपकी हैप्पीनेस ही नहीं है फिर। हाँ, तो इट हैज टू बी देयर फ्रॉम बोथ द साइड्स ना। हाँ, जहाँ यूथ है उसको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि मेरी रूट्स, मेरी कल्चर, मेरी चीजें छूटनी नहीं है भाई। आप खुद सोच के देखो ना, आप जितनी भी आज बात कर रहे हो, अगर आपने एबीसीडी नहीं पढ़ा होता तो क्या आप सेंटेंस फ्रेमिंग समझ पाते? नहीं। Not आपके at all. पास अगर वोकैबलरी नहीं होती पुरानी, या आप रोज किताब नहीं पढ़ रहे होते, या आप लोगों को सुन नहीं रहे होते, या बात करते हुए देख नहीं रहे होते, तो क्या आप इतना सारा पॉडकास्ट करने के लिए बड़ा सा फ्रेमवर्क तैयार कर पाते? Not at all. नॉट एट ऑल। सो It's hard work. इमेजिन, यस, इट इज वेरी 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 अप्रिशिएबल थिंग कि आपने इतना तैयार किया है, चीजें की हैं, आप कर रहे हैं, वो सब चीजें हैं। लेकिन वो सब चीजें क्यों हुई? क्योंकि बैकग्राउंड में आपके पास में कुछ चीजें थी। अब नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम क्या देंगे? वो तैयार करना पड़ेगा ना, वो वोकेबलरी तैयार करनी पड़ेगी। एबीसीडी तो आज से नहीं, कब से चली आ रही है। बोलो ना कि एबीसीडी खत्म कर दो, एबीसीडी की जगह हम कुछ नया शुरू करते हैं। कैसे बनेगी लैंग्वेज? कर रहे हैं ना आज तक हम उसको। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि हमारी रूट्स में, हमारी हिस्ट्री में, हमारी कल्चर में कुछ तो है ना जिसको लेकर के हम आगे चल रहे हैं, और लेके जाना पड़ेगा, वरना हमारी सभ्यता खत्म हो जाएगी, इंसान बचेंगे ही नहीं अगर वो चीजों को हम लेके नहीं जाएंगे तो। करेक्ट? अगर आपके पास बुक्स ही नहीं होंगी, आप पढ़ोगे क्या और पढ़ाओगे क्या आगे जा करके? पर वो बुक्स, इफ आप बुक्स वो अपग्रेड तो हो सकते हैं ना, यस, दिस बट वो अपग्रेडेशन अपग्रेड जो है नहीं वो होता, अवेयरनेस से आएगा। पर वो अपग्रेड होता ही नहीं है। हाँ, क्योंकि वो वेरी ट्रू, वो अपग्रेड इसलिए नहीं होता क्योंकि वो उस जगह, वो मैन्युफैक्चरिंग ही वहां की है ना। वो Correct. मैन्युफैक्चरिंग, वो जो टाइम है, वो टाइम तो नहीं वापस आ सकता ना, वो अपग्रेड नहीं हो सकता ना। आपका पहला साल जो बीता, आप उस पहले साल को अपग्रेड नहीं कर सकते ना, आप आज का साल अपग्रेड कर सकते हो। समझ रहे हो आप मेरी बात? हाँ, हाँ। है ना? तो आप अपने साथ, और आपके जो आप जब अपने फर्स्ट 2 3 4 इयर्स में जिस परवरिश में रहे, जब उस टाइम का माहौल था, या उस टाइम पे जो जरूरतें थी, या जिस किसी की भी जो भी चीजें आती गई, आप उसको कितना भी ब्लेम कर लो, बट वो चीजें, सिचुएशंस जो है वो ऑटोमेटिकली जब आई, उसके हिसाब से ही आपकी परवरिश हुई ना, बेस्ट टू बेस्ट हुई होगी। जैसे आपने आज बोला कि आपने बहुत तैयारी की है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ग्लिचेस तो हुए होंगे। करेक्ट? A lot. राइट। सो वो जो ग्लिचेस हैं, अब जब आप नेक्स्ट करेंगे, उसका भी नेक्स्ट करेंगे, उसका भी नेक्स्ट करेंगे, तो अपग्रेडेशन हो रहा है ना। आप हाँ, यहाँ जिस प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं, उस दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी जाएंगे, उससे भी तीसरे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, बट देयर विल बी अ टाइम जहाँ पे आप अपनी अपनी स्टेबिलिटी में आ जाएंगे कि नाउ वी आर परफेक्ट, वी आर डूइंग दिस, एंड ये हमारा बेस्ट है, हम ऐसे कर रहे हैं और हमारा अच्छे से हो पा रहा है ये। Now we come on the. I have three parts of questions. One is the today's old time child marriage also happened. वो यंग एज में लाइक छोटे बच्चे अभी तक पढ़ाई नहीं हुई और कुछ नहीं हुआ और उनकी शादी कर दी. आज के टाइम में भी है बट इट इज इनलीगल टुडे. लॉ हैज मेड दैट no child marriage will happen in India today, but still it is happening.
one. Secondly, in when I was just bonding, my grandparents से आपने एक लड़की को बॉन्ड कर दिया, एक तो लड़की है, दूसरी लड़की आ गई, अब एक और करो, बेटा चाहिए। बेटा क्यों चाहिए? क्योंकि घर में बेटा चाहिए। आज के टाइम बच्चे क्यों नहीं पैदा कर रहे? बिकॉज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। ओल्ड टाइम में वो कहते लड़की आ गई तो लड़का चाहिए। एक लड़की आ जाएगी, हम पेट में ही बच्चे को मार देंगे, हम उसको पैदा करने नहीं देंगे। आज ये जनरेशन गैप पे बहुत है। आई कैन सी दैट, आई सॉ लॉट ऑफ वीडियोस दैट लड़की हो रहा है तो मार दिया और बच्चे को डस्टबिन में गिरा दिया। बिकॉज द वाई दैट माइंड सेट इज देयर टूडे, दैट हमको बस लड़का चाहिए, लड़का ही पूरा घर को संभालेगा। लड़की क्यों नहीं संभाल सकती? लड़की भी आइडेंटिटी है, वो भी संभाल सकती एज अ बॉय इज डूइंग इट। व्हाई इज दिस हैपनिंग? आपका ये क्वेश्चन बहुत सही है। आज भी जहाँ जिन जगहों पर थोड़ा कम है, थोड़ा मीन्स बहुत कम है, वो अवेयरनेस आई है और गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हुए प्राइवेट लेवल पर, एनजीओज, सोशल वर्कर्स एंड सोशल एक्टिविस्ट, टीचर्स, डॉक्टर्स, सबने बहुत अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से अपनी कोशिशें की, जहाँ से मैं कह सकती हूँ कि ये अवेयरनेस रही कि आज की डेट में बहुत कम हो गया है। लेकिन फिर भी आज भी जहाँ 10%, 5% जो बचा होगा, वो अगेन अगेन वही चीज़ है कि वो माइंडसेट बहुत ख़राब है कि हर चीज़ को मैं ऐसा मानती हूँ। और मैं ऐसा, मेरे जो क्लाइंट्स हैं, मैं कई बार उनको ये चीज़ बता भी चुकी हूँ कि जब कहते हैं कि मेरा बेटा ही वंश चलाएगा, मेरा बेटा ही चीज़ें करेगा, तब हम सबसे पहले यही क्वेश्चन करते हैं कि जो बेटा है वो कैसे वंश बढ़ा सकता है, क्योंकि वो तो तो एक एक ही लड़की भी घर बन में है। सकती है, एक लड़की भी हाँ, बन सकती है वंश। नहीं वही एग्जैक्टली मैं, मेरी बात को आप समझना कि बेटा जो है वो तो उसी घर का है ना, उसी घर में रहता है ना। बेटियां जो हैं वो अपना घर छोड़ के दूसरे घर में जाती हैं। हमारे यहाँ ये सोसाइटी का एक नॉर्म है। तो जब वो ऑब्वियसली वी विल दूसरे डू घर में इट जाती हैं, जब वो दूसरे घर में जाती हैं और जब उनका बच्चा होता है, तो वंश जो है बढ़ा कौन रहा है? वंश तो बेटियां बढ़ा रही है ना। और किसके नाम से जानी जाती हैं बेटियां? बेटा तो अपने बेटे फादर। फादर के नाम से ही होता है, लेकिन बेटियां आती हैं इस ससुराल में और कहती हैं कि वहां की उनकी बेटी है ये, उस गांव से आई है ये। तो बढ़ाया किसने? बेटियों ने बढ़ाया ना। उस गांव से चल करके तो इस गांव तक, यहाँ पर फादर का नाम और उस गांव का नाम तो बेटियां लेके आई ना साथ में। तो कैरियर जो है वो लड़कियां हैं। लेकिन क्योंकि आप बोलो सबसे ज्यादा अगर सुनो तो कहता कौन है इन चीजों को? मदर्स। तो यानी कि दुश्मन कौन हुआ? समझ किसको नहीं आ रहा? लेडीज को ही नहीं आ रहा। तो हुआ क्या? अवेयरनेस की जरूरत किसको है? मर्दों को जरूरत नहीं है, हम औरतों को जरूरत है। और समझने की जरूरत किसको है? सबसे पहले हम औरतों को जरूरत है। डाल किसके ऊपर देते हैं? हम मर्दों के ऊपर डाल देते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं शांति रखने के लिए? हाँ 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 बिल्कुल जी बिल्कुल, जैसा ये बोला गया वैसा ही वो आगे आगे बोलने लग जाते हैं। इसीलिए प्रॉब्लम है कि आज भी वो लेडी जो है, औरत जो है, आज भी वो शक्ति है, पहले भी शक्ति थी। आज की शक्ति में वो अपना ब्लेम गेम खेल रही है, अपना विक्टिम कार्ड डाल रही है, अपने आंसुओं से कुछ भी बुलवा रही है, या बेटी है, बीवी है, या कुछ भी, जो भी जिस तरीके से भी करने की कोशिश करे। तो बीइंग अ गर्ल आई एम जस्ट सेइंग कि हमें वो कार्ड प्ले करने की जरूरत नहीं है। we should have the respect for ourselves। अपने लिए, अपनी चीज़ों के लिए हमें जब अपने सिक्योरिटी फील होगी, सेफ्टी फील होगी, इमोशनली बैलेंस फील होगा, अपने लिए कॉन्फिडेंस आएगा, तो ऑटोमेटिकली हम चीज़ों को फिर अच्छा करेंगे। कॉन्फिडेंस आने का मतलब ये नहीं होता है कि नारी शक्ति का झंडा लेकर के हम बाहर पहुंच जाएं। कॉन्फिडेंस आने का मतलब होता है कि अपना काम ठीक से कर सकें, मैं अपने घर में अपना बैलेंस कर सकूं, अपना वर्क लाइफ, अपना पर्सनल लाइफ, अपनी हर चीज़ के अंदर बैलेंस लेके आ सकूं। ठीक है। तो जो केयर करना सिखाया गया, जो हमें चीजें बताई गई कि कंप्लेन नहीं करनी है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, तो धीरे 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 क्या हुआ? इमोशनल नीड्स को उन्होंने अपना इग्नोर कर दिया। और इमोशनल नीड्स को जब इग्नोर कर दिया तो
विमेन के अंदर वो गुस्सा आ गया, वो फ्रस्ट्रेशन आ गया। और वो फ्रस्ट्रेशन आने के बाद में क्या हुआ कि अगर मेरा नहीं हुआ, मेरी बहू का या मेरी बेटी का हो रहा है, तो वो जेलिसी आने लग गई। ठीक है। तो धीरे 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 क्या हुआ, लेकिन आज की डेट में चीजें ठीक हैं। आज की डेट में काफी कुछ चीजों को लेकर के, चाहे वो पढ़ाई की वजह से हो, चाहे वो अवेयरनेस डिफरेंट तरीके से हो, चाहे वो रिलेशनशिप का वो प्यार हो, कैसे भी हो, लेकिन स्ट्रेंथ मिलने लगी है इन चीजों को अच्छे तरीके से। एंड कहीं ना कहीं सुधार तो है। हाँ. Do you want to end with some thought to our generation today in this world? What out of this podcast, what do you want to tell to our generation and people around us? They can learn out of this some podcast. For this generation, I would love to say, uh, fly. Just go and fly, rise high, stay happy, but stay rooted, stay balanced. गैप तब जाकर के ब्रिज होता है जब हम जज करना बंद करते हैं। तो अगर हम कोशिश कर रहे हैं, आप जो यूथ की बात कर रहे हैं, अगर अब वो कोशिश कर रहे हैं कि हम पेरेंट्स को जज करें, सोसाइटी को जज करें, उसको जज करें, वहाँ ब्लेम करें, तो आप कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेंथ को कम कर रहे हैं। आप अपनी जो आगे बढ़ने की, फ्लाई करने की, चीज़ों को अच्छा करने की जो आपकी ताकत है, उसको कम कर रहे हैं। आप अपनी एनर्जी को फोकस करने की बजाय आप स्कैटर्ड वे में आप उसको ख़त्म कर रहे हैं। सो इसीलिए अपनी एनर्जी को थोड़ा बचा के रखो, अपनी एनर्जी को अपने ऊपर लगाओ, पॉजिटिव चीज़ों में लगाओ। एंड जो भी जहाँ भी जैसा भी कर रहा है, उसको बजाय पॉइंट आउट करने के, आप अपनी चीज़ों को अपने तरीके से कम्युनिकेट करते हुए, कन्वे करते हुए अपने काम पे फोकस रखो। एंड सिंपल सिंपल सी चीज़ है कि मैरिजेस ख़त्म नहीं हुई हैं। अभी उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है मैरिजेस को देखने के लिए, वो थोड़ा चेंज हो गया है, लुकआउट चेंज हो गया है, मैरिजेस इवॉल्व हुई हैं। एंड सबसे बड़ी चीज़ है कि पार्टनरशिप जो है वो एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग से, एक दूसरे के रिस्पेक्ट से, एक दूसरे की इमोशनल नीड्स को समझते हुए, उनकी लैंग्वेजेस को समझते हुए ही ठीक होगी। तो मैरिजेस को लिव इन रिलेशनशिप में या किसी डेटिंग एप्स में या अपनी जो अलग दूसरी चीज़ें हैं उनमें ख़त्म करने के बजाय स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ शेयर करो, सो दैट चीज़ें ठीक हों। मेंटल हेल्थ जो है ना, वो कोई लग्जरी नहीं होती है, वो एक नेसेसिटी होती है। तो अपनी मेंटल वेलनेस को भी समझना है, सामने वाले की भी मेंटल वेलनेस को समझना है, तभी चीज़ें ठीक हो पाएंगी। Today, I think I'm going to take something with me and apply on my daily life. It is a great honor that you have joined our first podcast on Thank you. Brainbridge. Thank you so much. Both of you are wonderful, and stay happy. All the best for your success. Thank you so much, Indu Auntie, for Thank joining you. us. Thank you. Namaste. Namaste.